Hello, good morning, everyone. Heartiest welcome to each one of you on behalf of Ignited Minds by PHF for joining this significant occasion on Sunday morning. Today is a very special day because we are here to pay a tribute to let Dr. M.L. Sehgal sir on his 96th birth anniversary. Sir is a pioneer of the Sehgal system, and all of us are so fortunate to have a path which we can follow and show wonderful results. It was in 1983 when Dr. M.L. Sehgal sir decided to dedicate his life to homeopathy and laid down his foundation of revolutionized homeopathy in Paharganj, New Delhi. He authored ROH book series 1 to 8. We are also blessed to have Dr. Sanjay Sehgal sir, who has been guiding us through his teachings to walk on the path shown by our a great mentor, led Dr. M.L. Sehgal sir. For sorry. For that, we have a power-packed sessions by eminent speakers. So without wasting much time, I hand it over to Dr. Nasir Qureshi, sir. Thank you. I am here to welcome Dr. Amarjit Singh Man sir. Amarjit Man sir, former lecturer of Homeopathic Medical College अबोहर. सर ऑथर है कई बुक्स और जर्नल्स के, जिसमें सर की बुक है होम्योपैथी एंड माइंड, सर उसके ऑथर है. और सर एक जर्नल चलाते हैं होम्योपैथी कम्युनिटी जर्नल. सर इसके अलावा काफ़ी सोशल प्रोग्राम्स में भी शामिल है, जैसे कि एक डीफ एंड डम स्कूल, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी स्कूल चलाते हैं. सर एक ओल्ड एज होम को भी सपोर्ट करते हैं. ड्रग्स एंड अल्कोहल के खिलाफ भी सर काम करते हैं. सर ने अपना करियर शुरू किया था डी फार्म करके, फिर एज ए फार्मासिस्ट सर गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन हुए. जब सर ने एज ए फार्मासिस्ट काम करना शुरू किया तब उनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट हुआ. तो सर एक प्राइवेट क्लासेस में जाते थे होम्योपैथी सीखने के लिए. उसके बाद सर ने जब होम्योपैथी सीख लिया तो एक DHMS कोर्स सर को पता चला 4 ईयर का. तब सर ने वो DHMS कोर्स ज्वाइन किया और सर ने फुल टाइम होम्योपैथी की तरफ डिवोट होने का निर्णय लिया. फिर सर ने कॉलेज में ज्वाइंट होने के बाद वहाँ पर भी कॉलेज यूनियन के तहत काम करते हुए उस जरिए से सर ने उनके कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिले, इसलिए एक बड़ा काम सर ने किया. ये काम करते हुए सर ने फिर भी स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं हटाया. सर ने पंजाब लेवल यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर में सेकंड रैंक हासिल की. उसके बाद भी सर ने 1984 में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया संगरूर में. और सर प्रैक्टिस करते रहे, 100+ OPD रही. 1993 में सर ने 100% माइंड टेक्निक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया. और इसी तरीके से सर अब भी 100+ पेशेंट से माइंड टेक्निक से देखते हैं. और सर के अलग अलग बहुत सारे चीज़ें चलते रहते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिन पे हर रोज एक केस डिस्कस होता है. और सर हर जगह पे टीचिंग में, एग्रीकल्चर में और बाकी चीज़ों में भी बहुत आगे रहते हैं. तो ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी का वेलकम करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है. तो मैं अमरजीत मान सर का वेलकम करता हूँ. वेलकम मान सर. मान सर सुन पा रहे? हाँ. मान सर आपका माइक ऑफ है. हाँ जी, एक मिनट सर. हाँ ना पसंद जी सुनाम पे नहीं तुंगल पुल ठीक हो गया तुंगल. हाँ जी, हो गया जी, हो गया. हाँ जी, वो ठीक हो गया. हाँ जी. हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्शन. ना कोई नहीं सर. आई एम थैंकफुल इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर नमोले लख सर, डॉक्टर मानसी पाटिल एंड अदर मेंबर्स to celebrate the birthday celebration of our master, our guru, Dr. M.L. Sehgal.
born on 23rd February 1929 सन 1929 76 celebration birth celebration. A great personality, great personality who gave new technique to us, totally new. Never before anyone spoken on mind technique, prescribed on mind technique. Later on, many followers followed our master. I was lucky to attend first seminar in November 1992. I raised a question how it is possible belladonna curing 35% cases. It is a acute short acting medicine where there is redness, heat, burning. But by the way, Dr. Namole sir, I purchased books of Dr. M.L. Sehgal sir 1 to 5 and I read first and second ROH series to listen, to learn the basic principles of this theory. Then I learned that the basic principle is to prescribe on most common rubrics, totally opposite to previous theory, and convert that language into the mind rubrics. Then I was posted at Turi in government homeopathic dispensary. There were too much rush in OPD, 150 patients daily or around about. First I prescribed opium, sir. जैसे एक लड़की आई उसको मैं अस्त में दे रहा था मेडिसिन, ये दी वो दी क्रॉनिक दी मियाजमेटिक दी, सब कुछ दिया। वो कह उसने बोला कि इतने देर हो गया मैं आपसे मेडिसिन ले रही हूँ, ठीक तो हो नहीं रही सर। तो मैंने फिर एक्स्ट्रावेगेंस बनाया उसका और उसको ओपियम 31 डोज दी। To my wonder, after 7 days, she was totally all right. And then my son was a little one at that time. He having fever, and today also same nature, laughing, smiling, frivolous, light desire. तो मैंने उसको बेलाडोना 30 दी, वो भी ठीक हो गया। Then sir never turned back from that theory. In at that time I was also posted at Turi and residence was at Sangrur and practicing at Sangrur evening time. As a no non-practicing allowance was given to us, so we have right to practice. Then I hold my patients put on mind theory in government homeopathic dispensary. Similarly in my practice, many said to me, "Why you are doing this? You will get failures. You prescribe in few cases to give trial." मैंने कहा कि जैसे हमारा एक रूब्रिक है कि एस्केप फ्रॉम विंडो, फिर तो ऐसे हो जाएगा मास्टर का। हमारे सेमिनार किया संगरूर में, पूरे पंजाब से घूमे फिरे, डॉक्टर्स को इनवाइट किया। वहीं से हमें डॉक्टर अवतार, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर रविंदर सिंह पहले ही हमारे ग्रुप में थे। तो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मिले हमें गिद्दड़बाह में। हमने देखा काफी मेडल थे उनके क्लिनिक में, उनसे बात की कि आप आओ। वो कहते पेशेंट तो मेरे पास भी डॉक्टर मान बहुत है जैसे आपके पास है, पर मजा नहीं आता प्रैक्टिस करने का, बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं हम काम कर रहे। तो सर पहला सेमिनार हुआ, अराउंड अबाउट 200 डॉक्टर पंजाब से आए। फिर तो हमने चढ़ी लगा दी रिपीटेडली। डॉक्टर एमएल सहगल सर को बुलाया, डॉक्टर एचएल चितकारा सर को बुलाया। जब जब सेमिनार होता था दिल्ली में, मैं 40-50 डॉक्टर्स को बाई ट्रेन लेके जाता था दिल्ली में, वहां अटेंड किया। फिर हमने फॉर 6 years कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हमारे जो टीचर है, रिस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर संजय सहगल, डॉक्टर जुगेश सहगल सर को संगरूर में कॉल किया। 1 मंथ वो आते थे। हम 40-50 डॉक्टर पंजाब से संगरूर में इकट्ठे होते थे और वो लेक्चर देते थे और नेक्स्ट डे चले जाते थे। फिर हमने उसी से 94 में एक मैगजीन शुरू किया, 8 पेजेस का शुरू किया, फिर वो लेंथी 50 पेजेस का हो गया। हम 94 से 200 था 2015 तक। जब व्हाट्सएप से टेलीग्राम आ गई तो फिर हमने वो उसकी पब्लिकेशन बंद कर दी। जो लेक्चर अटेंड की ना हमने, जो प्रैक्टिकली वेरीफाई किया, उसी से हमने एक बुक पब्लिश की, होम्योपैथी एंड माइंड, पंजाबी में, पंजाब के लिए। तो वो इतनी प्रैक्टिकल थी, कुछ भी उसमें थ्योरेटिकल नहीं था।
वेरीफाई किया हुआ था, तो हिंदी रीजन वाले कहते हमें हिंदी में कन्वर्ट ट्रांसलेट करके दो, तो हिंदी में ट्रांसलेट की। साउथ वाले कहते हमें तो इंग्लिश में करके दो, वो तो साउथ में के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट की। वो इतनी ज्यादा बेसिक बुक आज भी मानी जाती है। जो शुरू करते हैं कि हमने वहां से शुरू की और फिर अपनी इंटेलिजेंस से उससे आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं आज भी देखता हूँ डियर डॉक्टर्स के 30% केसेस तो होती हैं बेलाडोना के मेरे पास डेली ओपीडी में। इवनिंग में देखता हूँ 60-70, समर सीजन में 100 भी हो जाते हैं ओपीडी में। और 2-3-4 मिनट से ज्यादा केस टेकिंग में सर नहीं लगते। कमाल की बात तो ये है कि इतना लेंथी केस टेकिंग करते, ओल्ड वे से फिजिकल लेते, माइंड लेते, फैमिली हिस्ट्री लेते, पास्ट हिस्ट्री, कुछ भी नहीं लेना। सर कहते 3 पी लो, present, predominating, persistent, and you go to the medicine and you make only 3-4 rubrics, not many rubrics. Though many doctors doing like this, selects medicine on 3-4 rubrics, then open the Trium Medica Mind, then writes 15 rubrics, 50 rubrics. So new one difficult for new one is difficult to follow. Till today, I am doing same way. जो 25 मेडिसिन है जो सर ने, मास्टर ने, जो हमारे टीचर्स ने, डॉक्टर जोगेश सहगल सर, डॉक्टर संजय सहगल सर ने हमें कराई, उन पे हमारी भी प्रैक्टिस है, मेरी भी प्रैक्टिस है। जितने पंजाब में होम्योपैथी डॉक्टर फॉलो करते हैं डॉक्टर ML सहगल सर को, वो भी सब बेसिक में से मेडिसिन कैसे करते हैं मेरे को पता। 50% केसेस में ही देते हैं सो इजी वे। जैसे क्रॉकस का सर मैं बताता हूँ कि एंगर अल्टरनेट क्विक रिपेंटेंस एंड म्यूजिक टू मच लाइकिंग, म्यूजिक टू मच फाउंड ऑफ मेमोरी, एक्ट फॉर म्यूजिक, सिंगिंग, इनवॉलेंटली ज्वाइनिंग सिंगिंग। तो ऐसे करने में 2-3-4 मिनट इतने क्रॉनिक केस भी ठीक होते हैं। पैराडॉन से तो होते ही होते हैं। ऐसी कॉकलस है, ऐसी हायोसेम्स है, ओपियम है, स्ट्रा है, ग्नेशिया है, नेट्रेम्यूर है, सल्फर है, ऐसी जो मेडिसिन जारसेंक है, नक्स भूमिका है। तो ये जर्नी रही है मेरी। आपको सभी को ये दिन मुबारक हो। Great personality born on 23rd February, and you are thankful you are celebrating this ignited mind. Dr. Namole lecturer, Dr. Manshi Patel, thank you very much. Any question from any doctor can ask me any question. Any questions? If you have guys, Dr. Mansar is there. Today he's not taking a formal lecture, okay? Because we are celebrating our great masters ML Sehgal sir's birth anniversary. We are going to have lecturers like Jaswant Patil sir, Dr. Debashish sir, myself. If I get time, I'll also speak. And my Guruji, Sanjay Sehgal sir is also there, inshallah. If सर की अगर ये हो जाती है माशाल्लाह से, वो क्या कहते हैं हम लोग, अगर भजन कीर्तन करने का सर का मन हो जाता है, तो सर भी आज कीर्तन करेंगे। निमोले सर सर नमस्कार, नमस्ते मान साहब। Good morning, sir. On 23rd February, great day, great personality born on 23rd February. गुड मॉर्निंग सर। मेरे पे बड़ा डबल वजन है ना बेटा। आपके गुरु रहे और मेरे पिता गुरु रहे, अब डबल मुझ पे अब कर्जा डबल है। निमोले तेरे से ज्यादा कर्ज, जी सर, समझ सकता है ना। जी और सर, मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा है कि आई हैव टू कैच अ स्लीप, क्योंकि रात की फ्लाइट है, मैं पूरी रात जाऊंगा तो जी राइट। सर, जी सर। और आज तो गुणगान गुरु का होना चाहिए भाई, आज तो किसी का गुणगान होना ही नहीं चाहिए फिर, अगर सत्य में, है ना। देवशीष घोष नमस्कार भाई। मेरा खाने का कटोरा कहाँ है? देवशीष तो खा रहा है, मैं क्या देवा खाऊं? क्या कर रहा है? हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। देवा सुन ही नहीं रहा है, मस्त है। देवा की बोले, देवा बिजी भाई ईटिंग। ये भी ना मस्ती दुनिया की, क्या कहेंगे। तू कहाँ कहाँ से पकड़ लाता है भाई, दुनिया सोचेगी निमोले कहाँ कहाँ से निराले लोग पकड़ लाता अल्लाह, है। देवा अल्लाह, अनम्यूट कर, सर तेरे से बात कर रहे हैं, सहगल सर बात कर रहे हैं। देवा क्या पढ़ाएगा भाई? देवा कुछ थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ।
बेटा हाँ आज देवा, का चल तेरा ले ले, चल शुरू कर। आज उसमें क्या हो रहा है कि आज तो दिन बेटा उनका होना चाहिए, आपको आज पता चलना चाहिए कि वो मास्टर कैसे मेहनत करता था, वो क्या करता था। उनका केस सुनाऊंगा तो आत्मा तेरी हिल जाएगी। मेरे को लगा मतलब हम जर्नी कराए। जी मैंने सर। कल रात को लिया है। जी सर। पहली बात मुझे कमेंट मिला है। मैंने रशिया का पूरा, और वो लेक्चर 3 घंटे चलना था, रात के 12:45 खत्म हुआ। ओ। फ्राइडे की नाइट। फिर कहा था ना, मैं एक दिन पहले भी फंसा हूँ अगले दिन। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनको एक जर्नी पे ले गया, जो मैं पास आउट होने जा रहा था। एग्जाम हो चुके थे, अभी रिजल्ट्स वर अवेटेड, राइट, होता है ना। जी। तो उस केस पे मैं पिता के साथ गया था, और मेरा क्या तमाशा बना था, गुरु के सिखाने का तरीका क्या था, और हम क्या सीखे थे। और उन्होंने कहा कि यार दैट्स वेरी गुड। मैंने उसका नाम ही लिखा था, जर्नी टू माय मास्टर्स एज ए यंग अप्रेंटिस विद माय मास्टर, उसका हेडिंग दिया था। कि मुझे तो आज देवशीष, इससे पहले तू शुरू इसको समझ लेना बेटा, सर आपको क्या क्या कहेंगे, कह दूं मैं शुरू हो जाऊं, फिर मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं। मैं ले लूं बेटा, क्या कहता। हाँ सर, आप ले लीजिए। देवा तू सर के बाद लेना। मैं मेरे साथ देवा को भी शुरू हूँ बीच बीच में। देवा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, है ना, डोंट वरी। मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र मुझसे बड़ी है छोटी है, प्रणाम करता हूँ, छोटा मुझे है सर, मालूम। मेरे से भी छोटा है ये। अच्छा बड़ी, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं भाई, आज तूने सोचा कीर्तन क्यों कर रहे हैं, और मैं क्यों आ गया तेरे बुलाने, क्या करते हैं हम? सभी बच्चे हैं ना मेरे। जी ये सर। पद्मश्री कौन है, ये पद्म भूषण कौन है, पद्मश्री कौन हाँ है? सर। अच्छा, इसको समझना बेटा। आज और मैं ऐसी गुड बकवास मॉर्निंग करूँ सर। आज, मेरा दिन है। आज मैं इमोशनल हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं होगा, कोई पत्री नहीं होगी, बस मन होगा और उड़ा तेरे साथ उड़ा दूं, जी सर। राइट। क्यों कहते हो यार होम्योपैथी को एक साइंस और आर्ट, और समझ लेना इसको। आज फिर थोड़े थोड़े हमारे चक्षु खुलेंगे, ब्रेन के चक्षु, आंखों वाले चक्षु। क्या खुलेगा? दिमाग के चक्षु खुलेंगे। आज हो गई हरी से बात। हाँ बेटा, क्या लेते हो? व्हेन यू टेक अ केस व्हाट यू डू, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बेसिक्स। क्या केस टेकिंग है देवशीष? मजा आएगा देव, है ना। डू यू टेक अ केस? देवा अनम्यूट कर दे यस तेरा। सर। पद्मा, पद्मा कोई ऑन कर देगा, कोई बच्चा देख रहा है इसको, इसी को पूछ लो भाई कौन है पद्मा। डू यू टेक अ केस? यस। डू यू टेक अ केस, आई एम आस्किंग इट। यस, we डू यू listen वांट to टू, the patients, sir, डू यू not टेक अ the केस? case taking. Simply asking, I'm simply asking, do you take a case? Yeah. Yes, sir. Yeah. How नो you सर, take a, how you take a case? वी डोंट टेक Yes, sir. We listen the patients, sir. Yeah. So that's why my son corrected me when he was teaching me organ on. You see that? I have two gurus, or too many gurus. मुझे लगा नमोले नहीं पढ़ाएंगे, जब निमोले सर पढ़ाएंगे कल से निमोले सर, और मैं ऐसे ही बैठूंगा मस्ती से, देख लंगोटा लगा के आराम से, है ना। जब तू पढ़ाएगी बेटा तेरे से पढ़ूंगा, जब देवशीष पढ़ाएगा मैं उससे पढ़ूंगा। और इतना आनंद आएगा पढ़ने में कि अगर तुम पढ़ने को तैयार हो। we what is the difference between case taking and case receiving or receiving? दो यात्राएं अलग होंगी आज, बताऊं। what is case taking? जो आपको डिस्पेंसरी में एस सिखाया जाता है, what is taught you in the universities, वो दिखाया जाता है। how to take a case, वहां कोई नहीं लिखता how to receive a case। लिखा क्या जाता है? शीट्स कहाँ थी, जितना हमारा टॉपिक था जो देते थे, 20 नंबर मिलते थे ना ऑर्गन में लिखने के। क्या होता था? केस टेकिंग। किसी ने हमें नहीं बताया व्हाट इज केस रिसीविंग। क्या फर्क है बेटा? पद्मा सॉरी तू फंस गई बेटा, लेकिन तेरा आज आज Okay, सीधा sir. सीधा संबंध हो गया मेरे से। In case is taking, there are only answers and questions. And while perceiving the case, we have to perceive the patient as a whole. He's उसको और बदल दे practice यार। mind. अगर बुद्धा ने अपने भिक्षुक को भेजा है तो कैसे भेजता था? पात्र देके, पात्र, उसको कहते हैं केस रिसीविंग। Yes. रिसीविंग परसेप्शन तो बाद में आएगी, पहले तो रिसीव करोगे। Yes. किसी ने तुम्हारी पात्र में क्या डाल दिया वो बाद में रिसीव करोगे, पहले तो रिसीव करोगे। रिसेप्शन Yes, है, sir. स्टेप बाय जाएंगे, चलेगा। बस बस ये समझ गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों होम्योपैथी को एक साइंस और आर्ट कहते हैं। केस टेकिंग इज एन साइंस वेयर फिक्स फॉर्मुलेशंस आर गिवन, ये स्त्री, वो स्त्री, दैट स्त्री, दिस स्त्री, या आपने वही अंकलन करना है और वो आपको दिखता है।
what is his age? 45. What's his name? ये केस टेकिंग का पार्ट है। Yeah. समझ आ गई मेरी बात बेटा? बस फिर मजा है कि जब 8 बनेगी तो फिर वो रिसीव, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। वहां डॉक्टर सहगल कहते थे बैठ जाओ पात्र लेके, एंड यू आर एट ए रिसीविंग एंड। अनफॉर्चुनेटली वहां तुम बादशाह नहीं होगे। जब तुम केस टेकिंग करते हो तो यू फील लाइक अ डॉक्टर। हाँ भाई बताइए आपका नाम क्या है, तुम्हारी अकड़ सी, तब तुम्हारी दुनिया अलग होती है। बिकॉज यू फॉर्मुलेट अ फॉर्मूला, you want to have certain answers the way you said, you were very right. That is called case taking. That serves your first purpose of, क्या पर्पस पूरा होता है उससे? द साइंस ऑफ होम्योपैथी के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए, बीमारी का नाम, उसका कॉन्टेक्ट, सब कुछ आना चाहिए। उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए फिर, राइट? फिर तुम उसमें गायनेकोलॉजी भी पढ़ती हो तुम, कार्डियोलॉजी भी पढ़ती हो तुम, और क्या नहीं पढ़ती हो, हाइजीन भी पढ़ती हो, न्यूट्रिशन भी पढ़ती हो, योगा भी पढ़ती हो, सब एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म्स हैं। उसके अंदर हम उस ढांचे में डालने की जब कोशिश करते हैं तो बेटा वो केस टेकिंग कहलाती है। अब फुल टी शीट आती थी जिसके लिए 20 नंबर का मार्क मिलते थे हमें कॉलेज में, होता था ना निमोले, लियाकत, राइट? और यार सब, आज सबकी खिंचाई होगी बहुत। सर कहते थे आज का दिन सच नहीं बोला तो फिर कब सच बोलो, है ना? निमोले आधे लोगों ने मुझे कह दिया सर हम कौन है, एकलव्य। तुम भी उनमें एक हो जिसने कभी मुझे कहा था ना? जी। नहीं बेटा, इस दुनिया में एकलव्य बनना बहुत मुश्किल है। अंगूठा दोगे, काट सकते हो। और अगर मैं बहुत चालाक गुरु हूं तो कहूंगा अपनी वाणी दे दे, क्या करेगा? सही है। इसलिए कोई एकलव्य नहीं हो सकता। तो नहीं। जिसने मुझसे मस्ती से ड्रामा किया, मैंने हंस के कहा बेटा नहीं, तुम सब लव्य हो, तुम एकलव्य नहीं हो, तुम्हें सब चाहिए और हर गुरु से चाहिए। ये कह सकते हो, ये सही शब्द होगा, एकलव्य सही शब्द नहीं, क्योंकि गुरु ने अगर अंगूठा मांग दिया, आवाज वाणी मांग दी, भाग जाओगे मैदान से, इतना दम अभी नहीं। ठीक कह रहा हूँ बेटा पद्मा? Yes, बदमाश sir. कह रहा हूँ? Yes, sir. तुम सब लव्य हो क्योंकि तुमने हर से लेना है। दैट्स राइट नॉमेनक्लेचर। नया नाम दिया बेटा मैंने एकलव्य को, चलेगा? हाँ बहुत भाई लियाकत, जी सर, बिल्कुल। तेरे लिए नया आविष्कार हो गया। मेरे को लगा बहुत, तू नहीं था, बहुत मिले मुझे बॉम्बे, कोई को अदर सॉन्ग से मिला, वो बोला सर हम तो, सर आपका, सर हम तो एकलव्य हैं, बस हम तो। मैं कहा यार एकलव्य कैसे हो गए? तुम तो एकलव्य के गुरु निकल आए, तुम तो सब लव्य हो। तुम संकलन से भी उठाना है, सॉन्ग से आ रहे हो, मेरे साथ वॉक कर रहे हो, मौका मिला मुझसे ही ले रहे हो, सैगल उठा रहे, जो मिल रहा है प्रिडिक्टिव उठा रहे हो, तो तू तो सब लव्य हो गया बेटा, तू एकलव्य कैसे होगा? बता किससे जस्टिस करेगा? आवाज आ गई एक गुरु से, किसके साथ चलने को तैयार होगा? सॉन्ग में जाएगा, मेरे साथ जाएगा, प्रिडिक्टिव में जाएगा, कहाँ जाएगा? तो प्लीज चेंज योर नेम, डोंट डिसीव एकलव्य। उस बेचारे की अनुभूति को छेड़ने का अधिकार नहीं होता बेटा, चलेगा? माफी चाहूंगा, आज की लर्निंग तेरे लिए मजेदार रहेगी बेटा, समझ में आ गया? यू कैन बी सब, तेरा नाम नया हो गया आज से, सब लव्य, चलेगा? जी सर, जी जी। हर गुरु एक नाम देता है, सब लव्य। क्या बात है सर। सुना नहीं ना ये नाम, कभी सुना? नहीं नहीं सर, सुना? नहीं। ठीक है, मैं हर बच्चे को ये नाम दूंगा कि यार तुम सबसे लो ना। जी सर। क्यों इस अपने आप को क्यों धोखा देते हो कह के कि यार सर में कोई किसी का लव्य नहीं होगा? सबसे ज्यादा तुम अपने को लव्य करो, क्योंकि तुम्हें ग्रो होना है, यू हैव टू। चलो इस पे अब बात आ गई कि जब बात आएगी उस केस रिसीविंग की, जब पात्र लेके खड़े हो गए, तो तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम उसकी दया दृष्टि पे हो, पेशेंट की, उसके अटेंडेंस की, और अपनी परमात्मा की दी ऑब्जर्वेशन जो तुम्हारे पास हो, कर पाओगे ही। आज का लेसन मेरा पूरा हो गया, तेरे को एक नाम मिल गया बेटा, जी सर। और उन सबको एक यात्रा मिल गई कि क्या फर्क होगा मैकेनिकल केस टेकिंग, जिसे आर्ट का पोर्शन नहीं कह के साइंस कहा जाएगा, साइंस ऑफ होम्योपैथी, जी। आर्ट के लिए जब उतरना होगा। देवशीष अब तू कुछ बोल, मैं भी कुछ खाता हूँ, तूने खा लिया है, और उसके बाद मैं 15-20 मिनट और दूंगा जिसमें मैं कोशिश, ये क्या लिखा था, क्या लिखा, स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है? साउंड्स लाइक यू माइट बी स्विच टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। इसको क्या करना बेटा? आज बड़ा नहीं, हैकिंग शैकिंग कुछ बहुत हो रही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, क्या कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, नथिंग। इग्नोर कीजिए उसको, आपका सही आवाज आ रही है तो हमको। किसी ने मुझे, मैं बड़ा शौक, क्या कुछ घटना घट रही है ना, कुछ शौक हो गई थी। somebody puts a stop on you, क्या करेगा निमोले?
Yeah, sir. Somebody puts a तू कुछ कर रहा है, somebody puts a dot, a spot, on and me. he puts a stop. So I probably get disturbed by that actually. होगा ना, थोड़ा सा तो होगा, चलो डिस्टर्ब ही हो गया, एक पोर्शन कर दिया, चल, और उसे स्टॉप ही कर दिया, तो हमारे पास क्या रास्ता है? तो मैं बोलूंगा यार, मेरे को एक बच्चे ने अभी सिखाया है, 5 मिनट पहले मैंने सीखा, कुछ ऐसी घटना घटी कहीं कि स्टॉप लगा दिया गया, और यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, कैंसिल द शो, कैंसिल द शो, राइट, सिंपल। पर उसी बच्चे का एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, उसने मुझे एक संदेश भेजा, और वन डॉट stops the sentence, Yes. but if you put many dots, it is a continuation. मुझे लगा यार बच्चे ने मेरे को जीवन दे दिया भाई। मैं मन निराश हो चुका था, मैंने सोचा तेरे को कहूंगा भाई, मैंने जसवंत साहब नमस्कार, ठीक है, मैं सोचा था नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगा यार बच्चे ने तो जान डाल दी। वन डॉट stops the sentence, it has a power to stop, the word था वन, उसने मुझे मैसेज भेजा, सर Power to stop. dot has a power to stop the sentence. Yeah. But if you put multiple stops, it is an indication of continuation. It is a future, it is flow. मजा आ गया। बता मैं किसको कहूँ मेरा गुरु कौन नहीं बेटा, माशाल्लाह। कौन मेरा गुरु नहीं है बेटा? धन्यवाद करूँ ना उस बच्चे का कि नहीं करूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल माशाल्लाह। अगर ये कला तू सीख गया बेटा, तो जिंदगी में इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा कि तुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा, और फिर तुझे लेना तो कुछ होगा ही नहीं। लोग कितने फल तोड़ के ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, तू फिर हंसता रहेगा है, किस पेड़ ने अपने फल खाए मुझे पता। और कल पेड़ दीवाना, मेरे पीछे पेड़ है नहीं, दीवाना हो जाए और इसके दिमाग खराब हो जाए कि यार बता, मेरे को लोग साले मेरे सेब तो तोड़ते हैं, पत्ते डंडियां भी तोड़ के ले जाते हैं, यार मुझे तो जिंदा रहने दो। और कोई पानी देने को तैयार नहीं होता, कोई कहेगा छोटा, वो दूसरे को दे लेगा, राइट? सो दिस इज हाउ द लाइफ इज, स्टिल दिस इज योर जर्नी। ठीक है देवाशीष, तुम कुछ बोलो, मैं कोशिश करूंगा, सुनता हूँ। जसवंत जी आप भी हैं, धन्यवाद, आज बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक उस गुरु की बात बताएंगे कि कितनी मेहनत उसको करनी पड़ी, आज तो जर्नी उनकी होनी चाहिए थी, उनकी जी गुणगान किए जाने चाहिए, जी सर। उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, इसके लिए एक गेम होना चाहिए। व्हाट वाज अ लाइफ, ये तो रूब्रिक्स तो रोज पढ़ लोगे, दवाई भी पढ़ लोगे, केसेस भी कर लोगे, जो लाइफ को सीखने का तरीका था वो समझ आ गई। आज एक छोटी सी लाइन दी है, केस रिसीविंग, ठीक है बेटा, रिसीविंग एंड केस टेकिंग, ये बिल्कुल अलग अलग कहानी है। और गुरु के साथ उतरोगे तो बेड साइड केस, डॉक्टर केंट का क्या कहना था, बार बार याद रखना, गो टू द बेड साइड एंड बी ऑन द साइड, देन हेलो, देन यू आर नॉट द मेन डिश। क्या वर्ड है? बेड साइड, It's it. द मेन इज द बेड, and there is a living, or there is a living being there, and you are the side. So be the bedside of the patient, rather beside the patient. सोचा कभी इस बात को नहीं बोले, वर्ड होता था बेड साइड, कभी बेड साइड का मीनिंग समझने की कोशिश की? Then you are not the man, then you are not the Lord, you are Yes. just there beside him, like him. उसमें अथी ले लो, पैथी ले लो, जो सिंपैथी ले दो, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बैठ जाओ, then you feel it. Oh, it is there. Yes sir, I saw it. Yes sir, I felt it. आज ही जो ब्राह्मण ने रचना की, कमाल कर दिया कि भगवान और ईश्वर का अंतर समझा दिया। एक प्रत्यक्ष रूप है, दृश्य रूप। भगवान भूमि, उन्होंने मुझे समझाया, मेरे पंडित ने मुझे आज ही समझाया। ईश्वर क्या है? वो शक्ति जो दिखती नहीं, सो भगवान का वो रूप है, लेकिन हमें दिखती हुई चीजें चाहिए थी। तो 3-5 चीजों का निर्माण हुआ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, भूमि, है ना, भ से भूमि, भव, गगन, वायु, जल, नीर, भगवान है ना, ये 5 चीजें बनाई, इनसे वस्तुओं का निर्माण हुआ, हम निर्मित हुए। तो ये हमारा साक्षात रूप है। जितने भी देवता हम मानते हैं, दिखते हैं, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उनसे निर्मित, क्योंकि इनका हमने एक रूप लिया। तो दिख रहा है साकार और निराकार के दो रूप, जो सामने समक्ष है, दिख रहा है, वो भगवान। अभी मुझे समझाया मेरे पास, अभी बनाया,
और जो नहीं दिख रहा वो ईश्वर है, पीछे शक्ति है जिसे आप कहते हैं, जो दिखती नहीं, दिखाई नहीं देती सबको. That was a subtle difference he explained us between Nirakar and Sakar. But we'll see in from the eyes, the presenting, है ना, पांच से बना हुआ भूत, पंचभूत, उसमें सब आकृतियां. तो हर आदमी कहता था मैं पुतलों को नहीं मानता, हर एक की अपनी धारणाएं थी. तो उनको लगा नहीं, मानना ना मानना आपके ऊपर छोड़ा जाए. अगर सभी हम, आप और मेरी शक्ल, आपकी शक्ल, जसवंत बाबू की शक्ल, घोष बाबू की शक्ल नहीं दिखती तो हम कैसे पहचानते बेटा? तो हमें आकार चाहिए था. वी नीडेड अ फॉर्म. इस साकार रूप है जो हमने भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, देवों के रूप बनाए कि यार किस किस रूप में हमें दे रहे हैं. उसके पीछे निराकार था जो सब सृष्टि को चला. तो ये दोनों का बहुत सुंदर अंतर है. दोनों अपनी जगह प्रत्यक्ष हैं. आपको बॉडी भी चाहिए और आपको सोल भी चाहिए, आपको माइंड भी चाहिए और बॉडी भी चाहिए. कुछ छूटेगा नहीं. देयर इज अ कनेक्ट. इतना ये अगर फिलोसफी, तुमने मुझे कहा था ना सर, सर कोई कीड़ा है फिलोसफी में घुस जाते हैं. फिलोसफी नहीं, वो जो सत्य को जानने की खोज में गया उसी को फिलोसफर कहा गया. वो उतर गए कि यार ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है, कैसे हम कनेक्ट होते हैं. ठीक है देवाशीष, माफी चाहता हूँ बेटा. मुझे इन्होंने कहा था पहले मान साहब लेंगे, मान साहब ले नहीं रहे तो वो स्लॉट खाली था. तेरा बाद में, तेरा समय बाद में, मुझे मालूम है ना. सो डोंट, आई एम नॉट ईटिंग इन योर टाइम. आई विल बी देयर. जसवंत जी का समय है, मुझे मालूम है. और मुझे था कि मैं माफी चाहूंगा, मैं पूरा सुनता बेटा हर एक बच्चे को, पर मेरी पूरी है, समझ रहा है ना. मैं बीच बीच में स्पोर्डिकली, एक मेरा बैग, सोच मेरी वाइफ थोड़े कपड़े फटक गई है भाई, अपना कर लेना, बात मान लग गया. रात परसों रात का मैं जगा हुआ हूँ, सुबह में योगेश के साथ था और दूसरे कीर्तन में, है ना. ठीक है चलो, इसको समझ में आई जो छोटी सी बात मैंने कहने की. जी सर. तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेटा तुमसे. कोशिश यही करना. मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं एक केस पिता के साथ फर्स्ट ईयर पार करके जब गया था, तो तब तो मुश्किल से 15, 50, 30, कहने को 50 दवाइयां पढ़ाई जाती थी फर्स्ट ईयर में, पर वो आती कितनी थी. और जो छोटी मोटी लाइनें होती थी उससे जो समझ में आया, और उस पर तुम्हारे को केस पे बिठा दिया जाए तो भूत आपका दम निकल जाएगा कि केस लेना कैसे. वो जो यात्रा होगी मजेदार होगी ना. तो मैंने अभी एक यात्रा दी थी, 19 साल 20 साल की उम्र, अपना एग्जाम दे दिया और वेट कर रहे हैं, और पिता एक केस पे लेके गए, और वो क्या देख रहे हैं और वो कर रहा है, और हमें कुछ समझ में नहीं. यार पूछ रहे हैं तो हमें कुछ भी मालूम नहीं. बताया उन्होंने कुछ नहीं, भैया इसको ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, बताओगे. 70 साल बाद मुझे समझ, मतलब है अब 50, 68 में मुझे लगा यार क्या क्या दिखा गए गुरु, जो मेरी नजर में इस वे सामने नहीं आया. तो जो पहली साल का बच्चा देखेगा, मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा 16, 17 साल की उम्र में, उसमें जो केस वो समझाएंगे. और उस वक्त भी माइंड तो बाद में आया था बेटा. इन 675 4 तक वो अभी भी क्लासिकल यूज करते थे, सब कुछ लेते थे, समझ रहे हैं. उस शिफ्ट करने में उनको भी देर लगी होगी, राइट. इसमें कि रातों रात ड्रीम आया और माइंड शुरू हो गया. इट वॉज प्रॉपर शिफ्ट फ्रॉम प्रॉपर क्लासिकल होम्योपैथी टू दिस थी. और वो कैसे शिफ्ट आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, और उस जमाने में भी उनकी पकड़ कैसी थी. जब भी वो क्लासिकल भी करते थे तो वो पकड़ ही अलग थी. वो जो ग्रिप थी वो कमाल की ग्रिप थी. वो इतनी सरल थी कि उसमें मजा आता. ठीक. तो देवशीष को दो. देवशीष बीच बीच में मैं आता रहूंगा और तेरा कीर्तन चलता रहेगा, कान मेरे सुनते रहेंगे. ठीक है. थैंक यू सर. सॉरी मेरी अनवांटेड बीच की इंटरप्शन के लिए, पर मुझे लगा आज मुझे यही संदेश देना है. संदेश यही अनवांटेड नहीं है सर. सबके बनो. नया नाम दिया मैंने तुम्हें आज, सबलव्य. जी सर. राइट. जी सर. और इस यात्रा को मस्ती से समझना है जी बस. सर. और एज स्पोर्ट्स लोगे तो मजा आ जाएगा. शाम 2:30 बजे मैच भी देखना है, देखना है. जी. छोड़ना वो भी, मस्ती तभी आएगी, तभी बचपन बना रहेगा और तुम जिंदा रहोगे. जी. हंसोगे तुम. आज लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ देवाशीष, क्या देखा मैंने. द्रविड़, द्रविड़ कोच है ना हमारे के, उसको दीवार कहते हैं जिस साउथ में मैं खड़ा हूँ. उसकी पूजा होती है यहाँ, राहुल द्रविड़ की. जी. वो किसको देखने गया. अंडर अंडर 16 गर्ल्स गर्ल्स की कोचिंग कैंप चल रहा था और उसको इनवाइट किया गया. एंड इमेजिन अ गर्ल की, वो लड़की की बॉल नहीं खेल पाया,
and he was, मतलब उसने टच की, पर he was surprised to see कि नेगोशिएशन करने में वो इन स्विंग और आउट स्विंग कितनी तेजी से हुई, जो उसकी समझ से बाहर थी। दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट बैट्समैन, एक 17 अंडर 16 या 18 का ग्रुप था, मुझे याद ध्यान नहीं, उसके कोचिंग कैंप में जब उन्होंने कहा लेट्स द्रविड़ सर बैट, तो यार मैं संजय सहगल सर अगर बैट करने जाऊंगा तो कोई भी बच्चा बोल कर देगा, ठीक है। विद दैट नोट आई गिव यू कोच, समझ रहे हो, मैं इतना ओपन हूं बेटा कि कोई भी बच्चा कभी मेरे को बोल कर सकता, और मुझे आनंद आएगा उससे। द्रविड़ ने जो कॉम्प्लीमेंट उसे दिए, बच्चे को बुलवाया, आजा, दैट वाज द बेस्ट बॉलिंग, उसको लगा था, समझ रहे हो, जी और सर। प्रॉपर वो गया खेलने की, जैसे टेक्निकली जाता है। सोच क्या हालत होगी, और कितना बड़ा हृदय चाहिए उसको समझने के लिए कि यू कैन बी, हर अगले दिन तुम आउटडेटेड हो जाओगे निमोले, सेकंड डे। एक्चुअली इतना ही ग्रो, परमात्मा ब्रह्मांड ब्रह्मांड ने कोई तुझे थोड़ा ना बना दिया है। ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो कोई निकम्मे हो गए, क्रिएटर के पास तेरे से बड़ा अगला पड़ा है, तेरे से और अगला पड़ा है, ठीक है। देखो पद्मा, आजा, थोड़ी जाऊंगा फिर इंट्रोड्यूस खाना। करते हैं। Padma, पद्मा, दे वाला Jyoti इंट्रोड्यूस तो sir. करना है। हो सर. हो सर, हो सर, देख मराठी सिखा दो यार मुझे थोड़ी सी, हो सर। Yes, sir. यस बेटा पद्मा। Yeah. Thank you very much, Saigal sir. It is very happy moment to start with your philosophical lecture and clearing the students difference between the case taking and receiving.